Hello, guys, this is Neo Comics, and I am your host, Dr. Manish, welcoming you all to the much awaited, much anticipated, and very delayed December comic book haul. जी हाँ दोस्तों, द मंथ ऑफ दिसंबर में जो सारे कॉमिक बुक्स मैं खरीदा हूँ 2025 का दिसंबर का मैं बात कर रहा हूँ, तो वो सारे कॉमिक बुक्स को अभी इसी वीडियो में फीचर किया जाएगा, including the ones that I purchased from the Indie Comics Fest which happened in late November, but क्योंकि उनको मैं फीचर नहीं कर पाया हूँ अभी तक individually, so I'll be giving them a detailed feature in this video itself, cramming it all up as the December comic book haul. So without any more further delay, let's get started. So first of all, I got Thought Circuit, a graphic anthology. This is the first volume and it has a total of I think 6 or 7 stories as you can see here. तो सभी में डिफरेंट कलाकारों ने काम किया है, डिफरेंट राइटर एंड आर्टिस्ट टीम, जिसकी वजह से यू विल गेट अ डिफरेंट फ्लेवर इन ईच एंड एवरी स्टोरी, बट मोस्ट ऑफ देम बिलोंग टू द स्लाइस ऑफ लाइफ जॉनरा, so some of them might be relatable up to some extent for you. Some stories are pretty good, very heart touching, while some did not manage to make the mark it was intending to. All in all, I love the attempt. मगर हाँ, थोड़ा बहुत प्रूफ रीडिंग वगैरह पर ध्यान देना चाहिए था, as there were a bunch of grammatical errors. मतलब मुझे तो 2-3 दिख गया. I don't know if I missed some or not. So I hope you can see that the art styles are changing and it's for mature readers. मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाने वाला. You get the idea, right? So this was about I think 500 rupees. And that's about all the stories it has to offer. Brown Pencils being the publisher. Next we have Shoto Preter Michile Rat. This is not an original Bengali graphic novel. Instead, it is a translated work. But मुझे ये कहानी काफ़ी पसंद आया है and the artwork is just top notch. As you can see, it's beautifully illustrated. The story belongs to the fantasy genre predominantly. But I loved the execution, थोड़ा बहुत sci-fi का touch भी है, and overall this has turned out to be an example of aesthetic storytelling. Like, look at this one, amazing, right? It's a visual treat and कहानी भी I think मैं एक ही सेटिंग में ख़त्म कर गया था. So yeah, शॉतो ब्रदर मिचले रात for the win. कॉल्बो विश्व कॉमिक्स ने इसको बंगाली में ट्रांसलेट करके पब्लिश किया है. There is also variant cover which is mesmerizing. अभी स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड में आपको शायद वो दिख रहा होगा. Anyway, the next one is Fenetre. I don't know if I pronounced it right. So this is one chunky graphic novel. Here are the creators. It is the story about a young girl from Rajasthan facing different obstacles. So child marriage वाला issue है and this is also for the mature readers by the way. So बीच में अगर कुछ आ जाए panels, viewers discretion is advised. And बोलते ही बोलते आ भी गया. So anyway, she is facing a bunch of hurdles. She is trying to, run away from the family because उसको इतनी जल्दी शादी नहीं करना. But यहीं running away के चक्कर में she comes across different experiences, both good and bad, mostly bad. So yeah, this is about her journey. I thought I'll love it, but midway it turned out to be a bit mundane and things were becoming a little pointless. Some characters were being introduced for absolutely no reason whatsoever. But overall, it's kind of well executed. मतलब इस जॉनरा से मैं इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख भी नहीं सकता हूँ. और विजुअली आप देख सकते हैं इट्स प्रिटी कंसिस्टेंट एंड ऑलमोस्ट यू कैन कॉल इट प्रिटी वेल ड्रॉन. सो ठीक है, अच्छा है. आई लव द एफर्ट. एंड देन आई हैव परचेंस टू ड्रीम बाई ओबिरॉल एंड मोइनाक. सो इसके साथ मुझे ये मिला है एक कार्ड. तो ये भी थोड़ा बहुत फैंटेसी सरियलिज्म वाला जॉनरा को बिलोंग करता है विद सम हिडन सोशल मैसेज. एक बहुत ही डिफरेंट टेक था ये. दिस इज़ नॉट कन्वेंशनल कॉमिक बुक स्टोरी टेलिंग. तो है इसमें एक तो एक्स फैक्टर है, बट देन अगेन आई डिड नॉट एन्जॉय इट एज मच एज आई थॉट आई वुड. सो देर इज़ दैट. Illustrations भी बहुत experimental है as you can see. So yeah. Then we have Dr. Acula by Anandini Sengupta. So as you can see, ये एक commercially published comic book नहीं है. It has been just printed and stapled and that's about it. But the fun part is, it is a one-shot story
written and drawn by a kid. She is not even 18, I guess, when this was published and being sold at Indie Comics Fest. So उस लिहाज से देखा जाए तो this was a pretty good read. I mean, I loved how well she have understood the art of comic making at this early age, and she has lots of potential, that's for sure. All the best, keep working on your skills, and you will make your mark in the Indian comic book scene in the near or distant future, that's for sure. एक interesting one shot story, a doctor who is also a Dracula, honest first attempt. एंड देन आई हैव लोबलूर पृथ्वी बाय चारबाग दीप्तोदा. सो जब मैं बंगाली कॉमिक बुक्स वगैरह का ओवरव्यू या कवरेज करता हूँ, आई ऑफ्टन टाइम्स गेट द कमेंट कि ब्रो ट्राई आउट लोबलूर पृथ्वी एंड इट्स प्रिटी गुड, एंड आई कुड डेफिनेटली एग्री विद देम. So this is more of a story that is happening inside the head of the main character, that is Loblu. So he is very imaginative and he has equally imaginative friends, and they are looking at the world very differently. हम लोग जैसे दुनिया को देखते हैं यूजुअली कि हाँ भाई बस चल रहा है, ट्रेन्स चल रहा है, लोग काम पे जा रहे हैं. दे वीव इट वेरी डिफरेंटली. दे आर वेरी इमेजिनेटिव, एंड रियलिज्म और फैंटेसी के बीच में जो दरार है उसको ये लोग लांग चुके होते हैं. इट्स क्वाइट रिफ्लेक्टिव ऑफ अ माइंड ऑफ अ वेरी क्रिएटिव पर्सन. सो उस लिहाजे से इट्स एन इंटरेस्टिंग टेल. और आर्ट वर्क तो आप देख ही सकते हैं, इट्स वेरी क्लीन एंड क्रिस्प एंड वेल ड्रॉन विद वाइब्रेंट कलर्स. लेकिन ये थोड़ा बच्चों वाला कॉमिक बुक जैसा आपको लग सकता है, बट है नहीं. देर आर सम डीपर लेयर्स टू इट, बट देन अगेन कोई ठोस एंटरटेनमेंट वैल्यू ये प्रोवाइड नहीं कर पाता है. इट्स जस्ट वट एवर इज गोइंग ऑन अराउंड इन द हेड्स ऑफ दिस फ्यू कैरेक्टर्स दैट आर शोन हियर इन दिस कॉमिक बुक. और यहाँ पर कुछ एक्स्ट्राज भी दिया गया है, एज यू कैन सी. तो लुबलू का दिमाग काफ़ी अतरंगी है, बहुत कुछ चलता रहता है, एंड या दैट्स इंटरेस्टिंग, बट अगेन डिड नॉट लाइक इट एज मच एज आई थॉट आई वुड. एंड आई थिंक दिस इज़ व्हाट हैपन्स जब आपके एक्सपेक्टेशंस आप बहुत ज़्यादा सेट कर देते हो, एंड देन you feel like you have been under delivered. So I think those were all the graphic novels that I bought from the Indie Comics Fest, and मेरे पास ये क्रिएटर वाला एक कार्ड भी है, बिकॉज वन ऑफ माई ग्राफिक नॉवल दैट आई हैड वर्कड ऑन उसको भी एक स्टॉल पे प्रेजेंट किया गया था, एंड इट्स कॉल्ड ग्राफिक कथा. आई थिंक सम ऑफ यू ऑलरेडी नो. हियर दिस वन, सो विथ अ ब्रांड न्यू कवर दिस टाइम. सो इसके वजह से एक स्टॉल पर हम लोग बूथ लगाए थे, एंड सम इश्यूज ऑफ ग्राफिक कथा टेल्स फ्रॉम द सुंदरबंस वाज सोल्ड देयर. एंड या आई लव द एफर्ट इन दिस वंस. दीज आर वेरी ऑनेस्ट एफर्ट्स, एंड उतना भी ज़्यादा commercially widely available नहीं है as some of the comic books that we get to see very frequently on social media. These are a bit of an underdog. I'll try to provide the links to purchase these ones if you are interested. लोबलूर पृथ्वी का अगर इंग्लिश एडिशन का फिजिकल कॉपी आ जाए, I'll let you guys know about that as well. फिलहाल बंगाली एडिशन का फिजिकल कॉपी अवेलेबल है, और इंग्लिश एडिशन आई थिंक किंडल में अवेलेबल है, एंड दैट्स अबाउट इट. ये इंग्लिश में है, ये भी इंग्लिश में है, और ये भी इंग्लिश में है. ये आई थिंक इंग्लिश में अवेलेबल नहीं है कहीं पर भी, अमेजन पर भी मैं चेक कर चुका हूँ. एंड दिस वन आई डोंट थिंक इज कमर्शियली अवेलेबल इन एनी वेबसाइट एज ऑफ नाउ. उसके साथ साथ आई गॉट सम रियली कूल आर्ट वर्क्स. सो दिस इज मेड बाय शुप्रियो, दिस वुल्वरिन इज मेड बाय प्रियांशु, दिस सुपरमैन इज ऑल्सो मेड बाय प्रियांशु, एंड दिस इज अनदर आर्ट वर्क बाय शुप्रियो. सो दिस लुक रियली कूल एंड आई गॉट देम. एंड विद दैट बीइंग सेड, इनफ अबाउट इंडी कॉमिक्स फेस्ट. इसके अलावा भी मैं जो कॉमिक्स खरीदता रहता हूँ, so here they are, starting off with Deceased paperback box set, जिसके अंदर कंप्लीट कलेक्शन का सारे पेपरबैक्स को स्लाइड इन किया गया है. सो हियर इज द कंप्लीट सीरीज, स्टार्टिंग ऑफ विद दिस वन जो मैं पहले ही पढ़ चुका हूँ. अमेजिंग स्टार्ट, ब्यूटीफुल इलस्ट्रेटेड. सो एक एक करके मैं सारे वॉल्यूम्स का इनसाइड आर्टवर्क्स आपको दिखाता जाऊंगा. Then there is this one, Deceased Unkillables. खून खराबा तो भरपूर है. Zombie apocalypse after all, so why not? Then we have Hope at World's End. I think a variety of artists has worked in these ones, because आर्ट स्टाइल थोड़ा बहुत चेंज होते हुए मुझे दिख रहा है.
Black Adam. Then we have Deceased, Dead Planet. And at last, Deceased, War of the Undead Gods. Tom Taylor is one of my favorite writers from DC. एंड अभी तक जितना रिव्यूज़ मिला है इसका इस सीरीज़ के बारे में, ऑलमोस्ट एवरी वन हैज़ स्पोकन वेरी हाईली अबाउट इट. And yeah, I do not doubt them as well because I have read Tom Taylor's previous works and he is a damn impressive writer, I must say. So इसको पढ़ डालूँगा बहुत जल्द कभी ना कभी, एंड फिर आपको बताऊँगा मेरा डिटेल्ड रिव्यू अबाउट हाउ आई फेल्ट रिगार्डिंग डिसीज्ड कंप्लीट स्टोरी. आई मीन इससे पहले मार्वल ने भी मार्वल ज़ॉम्बीज ट्राई किया था, but from what I have heard, it comes nowhere close to how well Deceased has executed the concept. So there are a total of 1 2 3 4 5 5 trade paperbacks collected in this slipcase, जिसका कंडीशन थोड़ा सा इधर उधर हो चुका है, बट ठीक है, इट्स नॉट फॉलिंग अपार्ट, सो चलेगा. आई गॉट इट फॉर अ स्टील डील, सो कैन नॉट रियली कंप्लेन. There we go. And I have also got this omnibus, Superman by Grant Morrison, the complete story arc. डस्ट जैकेट के नीचे ये है डबल पेज स्प्रेड. एंड दिस इज़ हाउ द आर्ट वर्क लुक्स लाइक. और थॉरोली कंसिस्टेंट है. डिटेलिंग्स देखिए दोस्तों, बहुत ही सुंदर. एक सेमी रियलिस्टिक चीज़ है इस आर्ट स्टाइल में, एंड इट्स नॉट वेरी वैकी और एक्सपेरिमेंटल, वेरी कन्वेंशनल, कमर्शियल एंड विजुअली अपीलिंग है. आई लव द शेयर डिटेलिंग. कलरिंग भी काफ़ी अच्छा हुआ है. एंड दिस इज़ नॉट अ वेरी थिन ऑमनीबस पर से. ओके, आर्ट स्टाइल चेंज भी होते हुए दिख रहा है मुझे. सो इसमें भी अ वैरायटी ऑफ आर्टिस्ट हैज़ वर्कड इट सीम्स, बट ठीक है. आर्टवर्क अगर बढ़िया है तो आई एम नॉट रियली गना बी कंप्लेनिंग. एंड ऑल इन ऑल आर्टवर्क तो बढ़िया ही लग रहा है. कहानी के बारे में ऑल्दो देयर आर मिक्स्ड रिव्यूज, सम पीपल रियली लव दिस वन, सम वर नॉट दैट बिग ऑफ अ फैन कि यार बहुत एवरेज टाइप का स्टोरी लगा उनको. मैं देखता हूँ कभी ना कभी इसको तो पढ़ूंगा ज़रूर, और फिर आई लेट यू गाइज नो हाउ आई फेल्ट अबाउट Grant Morrison's Superman run. Okay, this looks interesting. Bunch of extras, variant covers, behind the scenes, work in progress, character sketches, and all those good stuffs. So that's Grant Morrison's Superman omnibus for you all. And that is the December comic book haul as well. बस यही कुछ कॉमिक्स में ख़रीदा हूँ, सुपरमैन ऑमनिबस, डिसीज्ड एंड ऑल द इंडी कॉमिक्स फेस्ट स्टफ. और कुल मिला के अगर मैं सबका एक्सपेंडिचर जोड़ूँ तो इट कम्स अराउंड 8,500 रुपीज़ और सो. सो नीचे कमेंट में लेट मी नो कि हाउ मच डू यू थिंक आई हैव स्पेंट बिहाइंड कॉमिक बुक्स एंड एसोसिएटेड स्टफ्स इन द ईयर ऑफ 2025. लेट मी सी हु हैज़ बीन फॉलोइंग दिस चैनल वेरी क्लोजली. एक रफ एस्टिमेशन दीजिए कि कितना पैसा मैं खर्च चुका हूँ कॉमिक बुक्स और कॉमिक बुक रिलेटेड चीज़ों के पीछे 2025 में. आई विल पिन द कमेंट हु मेक्स द क्लोजेस्ट एस्टिमेशन फर्स्ट. 4-5 हज़ार रुपये इधर उधर हो सकता है, बट उससे ज़्यादा डेविएशंस नहीं होना चाहिए. पुराना वीडियोस को आपको गो थ्रू करना है, आप कर सकते हैं और नीचे कमेंट में मुझे बता सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ़ यू हैव लाइक दिस वीडियो, फील फ्री टू लाइक इट, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच अमेजिंग वीडियोज़, एंड आई विल बी सीइंग यू ऑल इन माई नेक्स्ट वन. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.